Today we shall be discussing on a very important issue, rather concept, two-way analysis of variance. As you can see, as I have already pronounced, that if we are talking in terms of two-way analysis of variance, we are having two independent variables. This is very important. Suppose, I'm just putting an example. Suppose you have to study creativity. You have to study creativity in relation to gender equality. तो टू वेरिएबल्स, यहाँ तो मेल फीमेल की क्रिएटिविटी को मेजर कर रहे हैं, तो क्रिएटिविटी डिपेंडेंट वेरिएबल हो जा रहा है। लेकिन हम क्रिएटिविटी और जेंडर दोनों का इफेक्ट अचीवमेंट पर देखना चाहते हैं। लिहाजा क्रिएटिविटी और जेंडर दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और यहाँ अचीवमेंट। तो उसमें इसको हम लोग डिज़ाइन की बात यदि करें, फैक्टोरियल डिज़ाइन, तो 2 इंटू टू लेवल्स, और तब ये बनेगा यहाँ मेल, ऊपर क्रिएटिविटी, और यहाँ यदि हम जेंडर रख दें तो यहाँ बॉयज़ का, यदि मान लो कि गर्ल्स का स्कोप, और फिर गर्ल्स का स्कोप, फिर क्रिएटिविटी का भी 2 लेवल और ले लें तो, और यहाँ बॉयज। तो क्रिएटिविटी यहाँ है और ये बॉयज का, ये बॉयज का। तो 2 वेरिएबल जब भी हम लेंगे इंडिपेंडेंट, तो हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में टू वे का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग और उसको बोर्ड पे लिख के आगे से करेंगे। फर्स्टली वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड the analysis of variance as a concept. So, in two-way analysis of variance, in general, the 2 independent variables are taken at a time. In fact, it permits the simultaneous study of 2 factors or 2 variables. या factors को ही variables करते हैं. The one-way analysis of variance and t-test do not permit the evaluation of इंटरैक्शन बिटवीन टू, मतलब इसके इंटरैक्शन, मेल और फीमेल और क्रिएटिविटी के इंटरैक्शन की बात हम उसमें वन वे में भी नहीं कर सकते हैं और टी टेस्ट में भी नहीं कर सकते हैं, विच कैन बी डन हेयर इन टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. द वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड टी टेस्ट डू नॉट परमिट द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 or more variables. The two-way analysis of variance permits such evaluation. The two-way analysis of variance has 2 main effect. मतलब मेन इफेक्ट किसका? क्रिएटिविटी का अचीवमेंट पे, जेंडर का अचीवमेंट पे। तो 2 इफेक्ट हो गया अलग अलग, ये कैसे आपस में प्रभावित होते हैं, मतलब क्रिएटिविटी से कैसे अचीवमेंट प्रभावित होता है और फिर जेंडर से कैसे अचीवमेंट प्रभावित होता है। तो एक तो ये बात हो गई कि the two-way analysis of variance has 2 main effects and 1 interaction or joint effect on dependent variable. अब ये दोनों का इंटरैक्शन इफेक्ट, मतलब जेंडर और क्रिएटिविटी मिला के जो इफेक्ट होगा उसको इंटरैक्शन इफेक्ट बोलते हैं। तो अल्टीमेटली 2 इंडिपेंडेंट जो रिलेशनशिप है या इफेक्ट देखेंगे, उसके अलावा एक इंटरैक्शन इफेक्ट भी देखेंगे। So we use two-way analysis of variance in 2 way, vertically, मतलब ऐसे, ये vertically, यहाँ से ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, और horizontally, और इसको column wise, और so we use two-way analysis of variance in 2 ways, vertically and horizontally, और column wise ऐसे, या फिर row wise। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। सो वर्टिकली याद रखो, नीचे, या इसको कॉलम वाइज कहेंगे, और हॉरिजॉन्टली इसको रो वाइज कहेंगे।
So, in many of our experimental studies, we wish to study the effect of two or more independent variables, usually called factors. इसको factor, two factor. Creativity is a factor and gender is a factor here. So, in many of our experimental studies, we wish to study the effect of two or more independent variables, usually called factors, on a dependent variable. The number of ways in which a factor is varied is called the number of levels of factor. उसके फैक्टर इसीलिए ये 2 into 2, 2 factor or 2 level. So the number of ways in which a factor is varied is called the number of levels of the factor. A factor that is varied in two different ways has two levels. And in the same way, when a factor is varied in three different ways, it is said to have three levels. So ये 3 into 2. In multiple classification or factorial design, both the independent and interactive effects of two or more independent variables on one dependent variable are analyzed. मतलब तीन काम करते हैं, इस पे इसका प्रभाव, इस पे इसका प्रभाव और इस पे इस दोनों का प्रभाव. टू, और यदि थ्री वे और तीन वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट चार है तो और बढ़ते चला जाएगा. द टोटल वेरिएंस की थोड़ी सी चर्चा हम लोग वहां कर चुके हैं. द टोटल वेरिएंस इज डिवाइडेड इनटू मोर देन टू पार्ट्स. वहां एक ही था, यहाँ दो पार्ट्स में बटेगा. वन पार्ट ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मेन इफेक्ट, क्योंकि मेन इफेक्ट दोनों का अलग अलग और फिर दोनों का जॉइंट इफेक्ट, उसको बोलते हैं इंटरैक्शन इफेक्ट. तो मेन इफेक्ट इज ए टेक्निकल वर्ड and interaction effect is a technical word. If you understand, you will, rather you have to understand it. Anyhow, in order to understand the design and the implication of two-way analysis of variance, you have to understand the main effect, दो independent का अलग अलग और फिर दोनों का joint. So interaction effect. One part of each interaction of two or more independent variables. मतलब ये the total variance is divided into more than two parts. One part of each independent variable, that is main effect. One part of each interaction of two or more independent variables. And one part the within group variance, जिसको error variance भी कहते हैं या residual, इसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं. In fact, in a design with two independent variables, the variance is divided into four parts. वही मैं फोर पार्ट्स की बात कर रहा था, लेकिन हमने इसको यहाँ छोड़ा इसलिए कि एक पार्ट हम लोग पूरा का पूरा वो उसको सेल कहते हैं. जैसे चार बन गया तो चार, टू इंटू टू का मतलब है चार सेल हुआ. एक पार्ट में एक पार्ट में दूसरा, कैसे हम लोग आगे देखेंगे. इन मल्टीपल क्लासिफिकेशन और फैक्टोरियल डिजाइन, बोथ द इंडिपेंडेंट एंड इंटरैक्टिव इफेक्ट्स ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वन डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर एनालाइज्ड. The total variance is divided into more than two parts. One part of each independent variable, that is main effect. One part of each interaction of two or more variables, that is interaction effect. And one part of the within group. In fact, in a design with two independent variables, the variance is divided into four parts. ये clear हो गया आपका. In case of three group randomized design, each of the three groups, तो ट्रीटमेंट ग्रुप भी उसको बोलते हैं, में फर्दर डिवाइडेड जेंडर वाइज एज मेल एंड फीमेल. इन दिस सिचुएशन वी हैव ए फैक्टोरियल डिजाइन विथ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ट्रीटमेंट एंड जेंडर. एज वी हैव थ्री ट्रीटमेंट ग्रुप्स, जैसे पिछले में हमने देखा था कि लेक्चर मेथड भी लिया था, ह्यूरिस्टिक मेथड भी लिया था, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड भी लिया था. यदि मेथड एक वेरिएबल है और उसके ये तीन एस्पेक्ट हो गए तो उसी की तरफ इशारा कर रहा है. So with two independent variables, treatments and gender, as we have three treatment groups and two groups of gender, this is an example of 3 into 2 factorial design. मतलब इधर यदि तीन हो गया, यदि दो गुने दो है तो ये हो गया, और यदि ये तीन, ये दो तीन ग्रुप और फिर ये दो यहाँ हो गया, तो 3 into 2. In the analysis of variance of this design,
द वेरिएंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये ध्यान रखना है कि 4 पार्ट हमको में बांटना है। वहाँ भी कुछ पार्ट के बारे में हमने समझा है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है समझने की। वो पहला है मेन इफेक्ट। मेन इफेक्ट किसका? मेन इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरा मेन इफेक्ट ऑफ जेंडर। ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी आप लगा रहे क्रिएटिविटी या जो भी है, सो जेंडर मतलब ये यहाँ हम क्रिएटिविटी ही लिखते हैं, क्रिएटिविटी का ट्रीटमेंट। और फिर मेन इफेक्ट ऑफ जेंडर। तीसरा द इंटरैक्शन इफेक्ट ऑफ जेंडर एंड ट्रीटमेंट नहीं है, हमने क्रिएटिविटी लिखा है, इसका ट्रीटमेंट इफेक्ट। 3 और चौथा रेजिड्यूअल, जिसको विदिन सम ऑफ स्क्वायर्स कहते हैं। मतलब जब भी हमको टू वे एनालिसिस का इस्तेमाल करना है और यदि सिचुएशन ऐसा ही है, तो एक वेरिएबल का मेन इफेक्ट, दूसरे वेरिएबल का मेन इफेक्ट, उसके इंटरैक्शन का इफेक्ट, और फिर within sum of a square. So these are 4. In the analysis of variance of this design, the variance is divided into 4 parts. The main effect of the treatment, जो भी है creativity, intelligence, whatsoever. The main effect of gender, the interaction effect of treatments with gender, मतलब जो भी है creativity यहाँ हमने लिया है, and residual, that is within group variance, जिसको हम लोग error variance भी कहते हैं. And so here we are to compute 3 separate values of f. यहाँ f का मान कितना निकालना है? 3। यद्यपि हम लोग निकालेंगे 4। कैसे बाद में देखेंगे, लेकिन एक जो शुरू वाला है उसका यूज डायरेक्ट नहीं है। So as we have seen here, we are to compute 3 separate values for f. One to test the difference among the treatments, मतलब क्रिएटिविटी। एक एफ निकालेंगे क्रिएटिविटी का रिलेशन अचीवमेंट पे देखने के लिए। सो द फर्स्ट वन, 3 सेपरेट एफ, 1 टू टेस्ट द डिफरेंस अमॉन्ग द ट्रीटमेंट्स, 1 टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन, मतलब जेंडर का इफेक्ट, अचीवमेंट का इफेक्ट, अचीवमेंट पर इफेक्ट मेल एंड फीमेल का। और फिर क्या देखेंगे? फिर देखेंगे तीसरा, the one test to differentiate male and female groups and one to test the interaction of gender and treatments। मतलब 3 निकालेंगे, वैसे 4, लेकिन 3 एफ हमको निकलेगा। एक तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने के लिए इसका ट्रीटमेंट का, दूसरा इसका, तीसरा इन दोनों का, चौथा हमने यहाँ विदिन जो निकाला था। तो विदिन तो सब में जैसा कि आपने देखा डिवाइड करेंगे तो वहाँ उसका यूज है, लेकिन ये चूंकि 2 है, एक से ज़्यादा है, तो एमोंग का भी इस्तेमाल होगा। और एमोंग का भी हम लोग टेबल में निकालेंगे, तो निकालेंगे जो उसमें से 4 निकालेंगे, लेकिन यूज टेस्ट करने में हाइपोथेसिस का हम लोग 3 ही करेंगे। सो ये आप यही समझिए कि हम 3 एफ निकालेंगे, क्योंकि एक निकालने के लिए वो निकालना जरूरी है, इसलिए उसको भी निकालते हैं। और चूंकि डाटा अवेलेबल है तो एफ उसका भी निकाल लेते हैं। नाउ कंप्यूटर हैज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विथ मेनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब इट इज 3, 4, 5, 6 एंड लाइक दैट। कंप्यूटर पे चूंकि इस पे आप देख रहे हैं कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू पुट इनटू डिफरेंट सेल्स। 4 में ही आपको लिखने में डाटा, फिर अरेंज करने में बहुत समय लगेगा। तो इफ इट बिकम्स 3 into 3, तो फिर 9 पार्ट में हो गया, फिर इट बिकम्स 3 into 4, 12 पार्ट्स एंड लाइक दैट। So the analysis, however, does not take into account the correlation between the dependent variable and the important intervening variable। मतलब ये एक लिमिटेशन हम इसका समझ ले टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का, क्योंकि हम रिलेशनशिप नहीं मेजर करते हैं। बट वी हैव अनदर स्टैटिस्टिक्स जो आगे हम लोग हो सकता है डिस्कस करें। सो correlation between the dependent and the important intervening variables are not being studied. Analysis of covariance as a statistics help the researcher for this work।
So, in this part of the lecture, we have understood that what we have to calculate, how we have to prepare the table, what does the two-way analysis of variance mean, और मुख्य रूप से 3F निकालेंगे, और ये जो 4 स्टेप्स है, ये वैल्यू हमको निकालना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स को भी भाग में बांटना है, कैसे, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब दूसरे पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम एक एग्जाम्पल लेके इसका टेबल बनाना सीखेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी मच एसेंशियल। So this is all about this part of the lecture.